Class ninth, we'll study the more portion in the water chapter, and we'll see the effect of temperature on solubility of gases in water. You know that water is capable to dissolve gases, and not only gases, other solids also, solutes and other substances also, because water is considered as a universal solvent. So we'll see the effect of this solubility on of gases in water when the temperature is being increased or decreased. So what will happen? So the point is that when you are increasing, suppose if you are heating, we are taking one example, you know water, you are heating it, and that water, when you are boiling it, it is always some bubbles, like things are coming out, then the water vapor is also coming out. So water vapors is basically what? This is in a gaseous form. So gas has been coming out. So when you are increasing the temperature, right, when you are increasing the temperature, then the gases that were dissolved in the water is being expelled out, it's been coming out from it. So means what happened when you're increasing the temperature and water, when increasing the temperature, and we are taking water as an example, which already contains gases like oxygen is there, hydrogen is there, it's been the combination of these two gases, other gases are also dissolved. So what happened ki when you're heating it up, it has been changing into water vapors and it's been liberated out. So the thing is that when you're increasing the temperature, the solubility of the gases decreases. So temperature and solubility, if you see, they have an inversely relationship. So if you are increasing the temperature, solubility will decrease. If you are decreasing the temperature, solubility will increase. I am writing one. If temperature is increased, the solubility will decreased. So this is one of the scenario. Now we are taking one example of it. Now you are boiling the water, and after that you are drinking at your home. So when you are boiling the water, you are seeing that the gases are coming out, they are expelled out from the container, and whatever the dissolved gases are there in the water, it's been coming out, you know. So when you're heating the water or you're boiling the water, the gases that are present in it, I have already explained you, that expelled out, है ना, दे एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, ये एक्सपेल्ड आउट किसका होगा? गैसेस का. तो बेसिकली व्हाट हैपन, द वाटर जो टेस्ट होता है दैट चेंजेस. सो यू नो दैट द वाटर, व्हेन यू आर बॉइलिंग इट अप, आफ्टर दैट यू ड्रिंक, वेन एवर यू आर ड्रिंकिंग द वाटर, इट्स टेस्ट इज डिफरेंट. सो व्हाट हैपन, द बॉइल्ड वाटर लूजेज इट्स टेस्ट. एक क्वेश्चन आता है ये, वाई boiled water loses its taste, or why the boiling water or boiled water taste is different what you are drinking at your home if you are not boiling it up. So what is the condition? That the water is holding lots of gases in it. So when you are heating it, then this gases is been coming out and is been expelled out, and because of it, what happened, the solubility is being of the gases dissolved in the water is decreased when you are increasing the temperature. This is the sign of increasing the temperature. We are using a burner, it's mean we are providing the temperature to the container. So this thing is been happened, right? Now if the above water is once again shaken with air, अब यही boiled water को अगर आप इसमें एयर पास कर दो या शेक कर दो ऑयल से, तो वाटर का जो टेस्ट है वो वापस है ना एज इट इज़ आ जाता है, वापस उसकी जो टेस्ट होता है, इट कम बैक, right? So this thing has been there. So what happened, when the gases are soluble in you know that gases are soluble in water, right? They are soluble in water. So when you are heating it up, temperature जब high करते हो, तो temperature is high, then gases are expelled out. If temperature is cold, ठीक है, so in that gases are more soluble in water. ठीक है, टेम्परेचर इज़ कह सकते हो कोल्ड, या कह सकते हो टेम्परेचर इज़ लो लिख लो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा.
टेम्परेचर इज़ लो, देन गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिकली कोल्ड वाटर में भी वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हैं ना, थम्स अप वगैरह आपने पिया रखा है, आप यू आर यूजिंग थम्स अप, सपोज करो आई एम नॉट मेकिंग इट, थम्स अप आपने लिया है या कोई और आप ले लो, तो इसमें क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है, CO2 इज़ बीन डिजॉल्व, राइट। तो CO2 गैस इज़ बीन डिजॉल्व ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, या सोडा बॉटल ले लो, इसमें तो कुछ भी आ जाए, इसमें याद रखना कुछ भी टीचर दे सकती है, सोडा बॉटल ले लो, ये थम्स अप की बॉटल, पेप्सी की बॉटल, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट दे आर ऑलवेज कंटेनिंग दिस CO2 गैस इज़ बीन देयर डिजॉल्व, ठीक है, अंडर प्रेशर पे एक डिजॉल्व होती है। अब कौन से, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर आप लोगे, है ना, तो जैसे ही आपने अपनी सोडा की बॉटल, थम्स अप की बॉटल आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर में खोलते हो, तो क्या हो जाता है, CO2 तो भैया गैस निकलेगी लेकिन कम निकलेगी, लेकिन वही चिल्ड कंडीशन में अगर आपकी बॉटल है, आपने कभी नोटिस करा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्रिज में रखते हो, ठंडी बिल्कुल रहती है और वो बंद है, और जब आप उसको खोलते हो तब उसमें से जो आपकी CO2 गैस जो निकलती है बहुत तेज़ी से निकलती है एज अ ब्रिस्क साउंड। बट व्हेन यू आर कीपिंग इट आउटसाइड, आपने बाहर रखा हुआ है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, और तब आप अपनी बॉटल खोल रहे हो, तब वो जो ब्रिस्क गैस की जो निकलती है वो लो हो जाती है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, बाहर था, जैसे यहाँ एक आपने फ्रिज में रखा हुआ है और इधर आपने ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रखा हुआ है ना, ये इस कंडीशन में क्या है, लेस CO2 आपकी लिबरेट आउट हो रही है, इधर ज़्यादा निकल रही है। तो क्या क्या रीज़न हुआ, बिकॉज ओवर हियर द टेम्परेचर वॉज व्हेन यू सी ओवर हियर इट्स व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या है, कोल्ड चिल्ड कंडीशन आपकी रही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि वाटर इज़ एट लो टेम्परेचर पे जो वाटर था वो ज़्यादा सॉलेबल था कंपैरिजन टू, भाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री होगा, 30 मौसम जैसा होगा, 35 भी हो सकता है, 40 हो सकता है, और फ्रिज की कंडीशन तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री हो, है ना, आपकी फ्रिज में यही वेरिएशन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक चिल्ड कंडीशन है ना, कोल्ड कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो CO2 गैस होगी वो एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस विल बी मोर, और ओवर हियर इट विल बी लेस। It's clear to you how this is happening, what is the effect of temperature is been there. Now we are focusing on the crystal that is not there in your course, but still before going towards water crystallization you should have an idea of crystal. Crystal देखो कुछ भी शेप की हो सकती है, जैसे मैंने एक क्यूबिक बनाया रखा है, रोम्बिक बनाया रखा है, आई एम शोइंग यू फ्रॉम योर डिफरेंट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, सो यू कैन सी ओवर योर रोम्बिक इज़ देयर, और टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है ना, ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये बेसिकली सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टल्स, एंड दे आर होमोजीनियस सॉलिड्स एंड दे आर सिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी प्रॉपर ज्योमेट्री इसी चीज़ को कहते हैं। जैसे क्यूबिक शेप इसने अटेंड कर लिया है, इसने रोम्बिक शेप अटेन कर लिया है, इसने टेट्रागोनल कर लिया है, मोनोसाइक्लिक कर लिया है, ट्राईसाइक्लिक कर लिया है, तो ये शेप्स इनको आप कहते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स की। So please make sure that you revise this thing part also before going. It's not there but still water crystallization के केस में बार बार word आएगा crystal, so you should know these are the homogeneous solids and they are symmetrical in nature, right, and they have the definite shape. Now next point is water of crystallization we'll focus. Now we are focusing on water of crystallization, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की केस पे अगर आप आते हैं तो बेसिकली आपको हम बता देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। दीज आर द सब्सटेंसेस, बेसिकली दे हैव द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनके पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखा कॉपर सल्फेट .5 वाटर, ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा सब्सटेंस है दैट हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डेफिनेट, और आप कह सकते हो दे हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the substances which have the fixed number of water molecules, and when they entered into a loose chemical combination with the substance, when the substance crystallizes from its hot saturated solution. So I am telling you why what I am saying you, but first of all by identification point आपको याद रखना है जो भी आपको substance दिया होगा उसमें they have a fixed number of और definite number of water molecules. जैसे copper sulfate है, ये hydrated copper sulfate है, ठीक है, so it has a fixed number of water molecules, 5 इसके fixed है wherever you go, so this water molecule is fixed. Now we are talking about water of crystallization. Basically these are the substances, इनको हम substances को अगर हम देखते हैं ये एक process होती है जिसको हम कहते हैं crystallization, ठीक है।
बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वी ऑलवेज प्रिपेयर अ क्रिस्टल. तो ये बेसिकली कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर है. ये बेसिकली व्हाट इट इज़ अ क्रिस्टल. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द वर्ड टर्म क्रिस्टल, because this crystallization words or crystals, they come again and again, and then you will be in a problem that what ma'am is saying. So suppose we are making a this thing, it's always prepared from a hot and saturated solution. So you are taking a hot and saturated. Now you know what is a saturated solution and what is a hot. Saturated का मतलब पता है ना कि आप वाटर लेते हो, उसमें आप यू आर एडिंग द सॉल्यूट पार्ट, और एक टाइम आता है जब वो सॉल्यूट पार्ट डिज़ोल्व नहीं होता, तो आप उसको फ़िल्टर कर लेते हो. तो दैट सोल्यूशन दैट इज़ बीन ऑब्टेन इज़ योर सैचुरेटेड. हॉट का मतलब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन जब आप बना लोगे तो उससे गर्म करोगे. सो यू आर हीटिंग इट अप. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, यू कूल इसको ऑन कूलिंग पे अप्लाई करते हैं. जब आप कूलिंग में अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि ऊपर आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं. ठीक है, ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो आपको ऐसे ही मिलते हैं. तो क्रिस्टल्स डिपॉजिट्स है ना, इनके पास क्रिस्टल रहते हैं जिनमें कंटेन करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यानी जो कॉपर सल्फेट आपने देखा है वो ऐसे ही बना होगा. आपने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया होगा, फिर से गर्म करा होगा, फिर से ठंडा करा होगा, फिर आपने उसको रखा होगा 5-6 घंटे के लिए. तो उसके बाद जो क्रिस्टल्स होंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आ गए, उनके बाद आप निकाल लेते हैं. तो दैट्स पर्टिकुलर क्रिस्टल इज़ नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, and they have also a geometrical shape, they have colors also. There are many water crystallization salts are there which are colored also. It's not necessary कि सभी colored होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे जैसे कॉपर सल्फेट है 5 वाटर, ये आपका ब्लू कलर का होता है. ठीक है, तो दे आर मैक्सिमम दे हैव अ ज्योमेट्रिकल शेप. ज्योमेट्री तो समझ ही गए हो ना, इस तरह की कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है. एंड कलर तो आप यू नो व्हाट इज़ द कलर. सो आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक विच यू हैव टू लर्न. दिस इज़ द डेफिनेशन विच यू हैव टू लर्न. From here the fixed number 2 called water crystallization. Now the next term come hydrated substances. Hydrate word जब लग जाए तो मतलब समझ लेना कि it's related to water. ठीक है, मीन्स एनी सब्सटेंस विच विल कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वही वाली बात, जो कॉपर सल्फेट आपने .5 वाटर देखा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल विल कम इन हाइड्रेटेड सब्सटेंस ऑल्सो, क्योंकि इसके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है. एज वेल एज इट विल कम इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो. ठीक है, कुछ जो चीज़ें होती है फिक्स होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में भी आएगा ये. सो कॉपर सल्फेट .5 वाटर विल कम्स इन हाइड्रेटेड सब्सटेंस. व्हाट डज इट मीन्स? दे कंटेन्स फिक्स्ड number of water molecules. ठीक है, in loose chemical combination substance. ठीक है, अब इसमें कुछ भी ले लो, जैसे कॉपर सल्फेट है ये आपका हो गया. अब अगर आप इसको देखो कैल्शियम सल्फेट .2 वाटर है ना, तो ये कैल्शियम सल्फेट है आपका. वैसे आप इसको बोलते हो कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसमें वाटर भी लगा हुआ है. तो कितने वाटर लगे हुए हैं? 2 हैं, तो डाई हाइड्रेट. ठीक है, ये 5 था तो क्या हो जाएगा? पेंटाहाइड्रेट, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. इसका नाम कैसे लिखोगे? कॉपर सल्फेट. 5 के लिए हम पेंटा यूज़ करते हैं, पेंटा. वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जैसे कोई और आप ले लो, जैसे FeSO4.7 वाटर. तो ये क्या है आपका? फेरस है ना, फेरस सल्फेट है. लेकिन फेरस नहीं, न्यू नोटेशन हम क्या लिखते हैं? आयरन 2 सल्फेट. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 7. हेप्टा हाइड्रेट. ठीक है, हेप्टा हाइड्रेट हो जाएगा आपका ये चीज़. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. अब बेसिकली आप ये याद रख लेना, इफ़ कहीं पे आपको 2 दिखे तो उसके लिए आप डाई लगा लेना. 3 दिखे देन यू पुट ट्राई. 4 टेट्रा. 5 के लिए यू राइट डाउन पेंटा. तो आपके लिए आसान हो जाएगा. वाटर के लिए हाइड्रेट यू आर यूजिंग. 6 के लिए हेक्सा. 7 इज़ हेप्टा. 8 इज़ ऑक्टा. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ऊपर जाता नहीं है.
और 9 तो होता ही नहीं है, जो रेयर ऑफ द रेयर केस होता है। 10 आ जाता है आपका ऑक्टा, बहुत ऊपर नहीं जाता है आपका। 10 के लिए डेका, सॉरी 10 इज़ डेका, तो यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। समटाइम्स इट्स कम, सो प्लीज़ यू कैन सी। एंड उसके बाद तो वाटर के लिए तो यू नो इट, आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू हाइड्रेट वर्ड यू हैव टू यूज़। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज़ एनहाइड्रस सब्सटेंसेस। एन मतलब, एनहाइड्रस मतलब नो वाटर, हाइड्रस होता है वाटर, हाइड्रेट हाइड्रस वाटर से ले। एन का मतलब हो गया नहीं, ए एन मीन्स नहीं, डू नॉट, नो वाटर, या आप कह दो डज नॉट कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन, डज नॉट कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ molecules of water of crystallization in loose combination with loose combination, chemical combination with the substance. जैसे आपने नॉर्मल अपने कोई भी सॉल्ट ले लो, NaCl, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है नहीं, KNO3 है वाटर में नहीं, तो ये सब कौन से सॉल्ट है। खाली कैल्शियम सल्फेट ले लो तो वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली खाली, अगर वाटर नहीं है तो वो क्या है, एनहाइड्रस सब्सटेंस में आ जाएगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वन ऑफ द कॉमन एक्सपेरिमेंट विच आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉपर सल्फेट 5 वाटर, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू इट इज़ ब्लू इन कलर, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली व्हाट हैपन, जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। और कॉपर सल्फेट अलग मिलता है आपको, वाटर अलग मिलता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग मिलते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये आपका वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एक्सपेरिमेंटल होता है कि दिस इज़ आपका ब्लू इन कलर, दिस इज़ वाइट इन कलर। जब आप उसको हीट करते हो, ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते क्योंकि वो एवेपोरेट हो जाते हैं। ये वाइट कलर का होता है, तो आप इसको वाइट पाउडर कह सकते हो। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो ये किस में आ जाएगा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आप इसे बोलेंगे। ये जो ब्लू वाला है इसको आप बोलेंगे हाइड्रेट या हाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये सब में आएगा। देखो हाइड्रस कॉपर सल्फेट हो गया, हाइड्रेटेड सब्सटेंस में भी आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी क्या होगी, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, है ना। अब थोड़ा सा इनमें ध्यान देना कि इस वाले केस में डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, इधर क्या होगा, नो ज्योमेट्रिक शेप, एमॉर्फस होता है नेचर। ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा ना, क्रिस्टल होंगे तो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा। दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। नाउ यू कैन सी, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है। जब आप इसको, वैसे ही ब्लू कलर का होता है, यू आर सीइंग इट, व्हेन यू हीट इट वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, ठीक है, और धीरे धीरे चेंज होके वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्रस सॉल्ट में जाता है। ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर से देख लो, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐसा ही होगा ब्लू कलर का, व्हेन यू हीट इट अप, ठीक है, देन इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव एंड दे बिकम एनहाइड्रस सॉल्ट, जो वाइट कलर का होता है। ऐसा दिखता है कॉपर सल्फेट। सो इन योर बुक दीज थिंग्स आर प्लेंटी ऑफ क्रिस्टल्स नेम्स आर गिवन टू यू। नॉट जस्ट सी, ये जो नॉर्मल नेम है, अगर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में ऐसे अगर आएगा तो प्लीज़ राइट डाउन द फुल नेम, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कॉपर नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट। चिल्ड्रन आर ओनली राइटिंग कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो अभी हमने बताया है कि एनहाइड्रस होगा, ठीक है। यू हैव एनहाइड्रस सॉल्ट ऑल्सो, सो दीज आर द थिंग। एंड प्लीज़ रिमेंबर दीज आर द कॉमन नेम्स, ये जो बेसिकली इनके ना कॉमन नेम होते हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स होते हैं। समटाइम जिप्सम इज रिटन, तो जिप्सम इज़ व्हाट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। लाइम सॉल्ट पीटर क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट टेट्रा
hydrate will be the name. So please, these are the common, these names are also asked in the boards, so please make sure that you have to learn these, their form days also, their namings also, so don't get confused. Anhydrous maybe, there are plenty of examples, you can have a look and you can learn them. Basically this is important क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए and you have to learn it. So please remember definition, जैसे hydrate crystal, what are hydrate crystals, what are anhydrous crystal, then what do you mean by water crystal, important है ना, हाइड्रेट सब्सटेंस क्या है, एनहाइड्रस सब्सटेंस डिफरेंस आ जाए, डेफिनेशन आ जाए. दिस पोर्शन इन इम्पॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस. दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो सोडा वाला रीजनिंग में और ये ऊपर वाला, सो प्लीज़ फोकस ऑन इट. राइट, दिस इज़ योर ग्राफ 1. in this portion is very important, this particular portion. One question every year comes from this portion. Go for the definition for solubility, difference between unsaturated and saturated, how to convert it into this thing, what is supersaturated solution, how you can convert it into saturated solution to an unsaturated one, right? Why, very important, why water is considered as a universal solvent, this is important. Now definition, solvent, solute, solution, this way you can have. So please, whatever I have taught you till now, learn it, and if you want to make the notes, you can make the notes in your copies, in your rough copies, right? And please mark the things whatever I am teaching you in the videos, then only you will be not confused ke what is there in your syllabus or what is not.